السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ الکہف کی ایک نہایت بابرکت آیت کو دیکھیں گے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اہل کہف کے ساتھ پیش آنے والے عجیب منظر کو بیان فرمایا ہے۔ اس آیت میں توحید، اللہ کی قدرت اور ہدایت کی عظیم نشانیاں پوشیدہ ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ آج ہم سورہ کہف کی آیت نمبر 17 کو گرامیٹکلی انالائز کریں گے انشاءاللہ۔ آیت کا پہلا حصہ ہے وَتَرَى الشَّمْسَ۔ واو ہمارے پاس حرف ہے، حرف استناف لیا ہم نے، اس کو یہاں سے ایک نئی بات شروع ہو رہی ہے۔ ترا، را حمزہ یا حروف مادہ با فا سے فعل مضارع واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، فعل بفاعل انت، اور الشمس اسم مؤنث ہے اور واحد ہے، معرفہ ہے اور منصوب ہے یہاں پر۔ تو یہ ترا فعل کے لیے مفعول بن جائے گا، یوں ترا فعل بفاعل انت اور مفعول مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا، اور ترجمہ کچھ یوں ہوگا، اور تم دیکھو گے سورج کو، یعنی دھوپ کو دیکھو گے۔ را حمزہ یا حروف مادہ با فا سے رآ یا یرایو، رآ یرا کیسے بنا؟ آنکھ سے دیکھنا یعنی دیکھنا صرف، ذہن سے دیکھنا یعنی سمجھنا اور خیال کرنا، نیند سے دیکھنا یعنی خواب دیکھنا۔ تو یہ سارے رآ یا ترا کے معنی آتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ رآ یا سے رآ کیسے بنا، جیسے ہم نے کہا کہ با فا سے ہے، یہ فاتحہ یفتح کا وزن ہوتا ہے، اس وزن پر جب ہم نے را حمزہ اور یا کو ڈالا تو یہ بن گیا رآ یا یرایو۔ ٹھیک ہے، تو اب اس میں دیکھتے ہیں کہ قواعد کون سے اپلائی ہوں گے۔ اس میں ایک تو محموز العین ہے، اور دوسرے نمبر پر اس میں ناقص یائی یعنی کہ معطل ہے، حرف علت یا آ رہی ہے حروف مادہ میں، تو یہ معطل ہے، اور معطل میں پھر ناقص یائی ہے۔ تو سب سے پہلے فعل ماضی کا دیکھ لیتے ہیں کہ رآ یا سے رآ کیسے بنا۔ تو حرف علت متحرک ہو، ما قبل فتح ہو، اور تو حرف علت اگر یا ہے تو اس کو الف مکسورہ سے بدلا جاتا ہے، اور اگر واو ہو تو پورے الف سے بدلا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اس کو الف مکسورہ سے بدلا تو یہ ہو گیا رآ۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے فعل مضارع پہ جب ہم آئے تو کیونکہ یہاں پر ہمارا فعل مضارع استعمال ہوا ہے اس آیت میں، تو اس لیے ہم اس پر فوکس کر رہے ہیں۔ یرایو تھا اوریجنلی یفتح کے وزن پر، یرایو۔ اب یہاں پر محموز العین بھی ہے اور ناقص یائی بھی ہے، تو محموز العین کا قاعدہ اپلائی ہوگا اگر محموز العین متحرک ہو، یعنی کہ حمزہ متحرک ہو اور ما قبل ساکن ہو، تو حمزہ اپنی حرکت پچھلے حرف کو دے کر خود حذف ہو جائے گا، اور یہ رول جو ہے وہ را حمزہ اور یا اس حروف مادہ پر ضرور لاگو ہوگا۔ عام طور پر یہ محموز العین جو ہے وہ نہیں پڑھا جاتا، نہ پڑھایا جاتا ہے، لیکن یہ والا رول جب بھی را حمزہ اور یا حروف مادہ آئیں گے تو اس پر یہ ضرور اپلائی ہوگا۔ تو یہ را نے اپنی حرکت جو ہے وہ پیچھے دے دی، حمزہ نے اپنی حرکت پیچھے را کو دے دی اور حمزہ خود چلا گیا، تو یہ بن گیا یارا یو۔ آپ دیکھ سکتی ہیں یہاں پر یارا یو، تو یارا یو اب ہمارے پاس آ گیا۔ اب ہم ناقص یائی کے قواعد لگائیں گے، جو کہ یہ ہے کہ حرف علت یا متحرک ہو ما قبل فتح تو حرف علت الف مکسورہ سے بدل جاتا ہے، تو یہاں پر یہ الف مکسورہ سے بدل گیا اور یہ بن گیا یارا۔ یارا سے جب ہم نے گردان پڑھی تو پھر اس کے بعد تارا ہمارے پاس مذکر حاضر کا صیغہ آ گیا، تو وہی ہماری آیت میں ادھر استعمال ہوا ہے۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت کا اگلا حصہ، جو کہ ہے اذا طلعت تزاور عن کہفہم ذات الیمین۔ اس کی ترکیب دو طرح سے کی جا سکتی ہے، تو میں انشاءاللہ ایک ترکیب تو آپ کے پاس لکھی ہوئی آئے گی، دوسری ترکیب میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گی، اس سے ترجمے میں فرق پڑتا ہے۔ اذا اس میں ظرف ہے، ظرف زمان ہے، اس کو ایزا ظرفیہ شرطیہ بھی لیا جاتا ہے اور صرف اکیلا شرط ظرفیہ بھی لیا جاتا ہے۔
अगर हम इसको इज़ा को ज़र्फिया शर्तिया लेंगे तो इसके बाद जो दो जुमले बन रहे हैं, जो दो फेल हमें ग्रीन कलर में नजर आ रहे हैं, तलाअत तजावरु, ठीक है। तो ये फिर ये दोनों जुमले जो हैं वो दो जुमले आपके सामने आ रहे हैं। इज़ा के बाद फिर दो जुमले हमें नजर आ रहे हैं, इत्तलाअत एक जुमला और तजावरु से लेकर आखिर तक ये दूसरा जुमला। तो ये शर्त और जवाब शर्त का पैटर्न बनेगा। ठीक है, तो इसकी तरकीब भी हम इंशाल्लाह देखते हैं। लेकिन अभी जो लिखा हुआ आपके सामने आएगा वो इज़ा को एज अ ज़र्फ लिखा हुआ सामने आएगा। तो इज़ा को अगर हम एज अ ज़र्फिया लेते हैं तो तरकीब कैसे होगी? तला तौला आइन हरूफ मादा बाब नून से है, फेल माजी वाहिद मुअन्नस और गायबा का सीगा है। इसका मतलब होता है तला यसू तुलूअन, बुलंद होना, सामने आना, ठीक है, चढ़ना, निकलना। तो ये मतलब है इसके। तजावरु, तजावरु हमारे पास जो है वो एक और फेल है, लेकिन हम पहले पिछले वाले फेल को कंपाइल कर लेते हैं। तलाअत फेल, किया फाइल, और जो है वो इजा ऑब्जर्व है, ठीक है। तो ये जुमला फेलिया हो जाएगा, तौलाअत एक जुमला फेलिया हो जाएगा। अब ये क्या बनेगा इंशाल्लाह इसको आखिर में हम देखते हैं, पहले तजावरु को देखें। तजावरु जावा और राह रूफ मादा बाब तफाउल से है। ये बेसिकली तता जावरु था, एक बाप की था, और जो है वो तता जावरु, और दूसरी था वो जो मोनस की सिगे की आनी थी, ठीक है। लेकिन हमने पढ़ा था कि ये दोनों तरह से लिखा जा सकता है, एक ता मर्ज करके भी लिखी जा सकती है, और एक ता जो है वो एक ता के साथ भी लिखा सकता है, और दो ताए भी आ सकती हैं। तो यहाँ पर जो तशदीद है ये पीछे मिलाने के लिए लगाई गई है, ठीक है, क्योंकि पीछे भी हरफ जो ता था ये भी ता है, तो इन दोनों का इदगाम हो रहा है, इस वजह से शद आई है। तो यहाँ पर ये एक ता के साथ लिखा हुआ है, ठीक है। फेल मुजारे है, वाहिद मुअन्नस हाजिर का सीगा है। और हाजिर का सीगा मोनस का क्यों कहा हमने? क्योंकि ये तलाअत भी मोनस का सीगा है, और ये अशम्स की तरफ लौट रहे हैं सारे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास तजावरु फेल बा फाइल आ गया। इसके अब माना देख लेते हैं कि एक को एक दूसरे से मिलना जुलना, किसी से बच कर निकल जाना, यानी कन्नी कतरा जाना, ठीक है, ये इसके माना है। तो इंशाल्लाह जब तर्जुमा करेंगे तो फिर हम इस पर फोकस करेंगे। तो इसका जो मफहूम है इनके लिए अन का सिला आता है। तो यहाँ पर जो है वो अगर हम अन को एज आ सिला लाना चाहे तो भी ला सकते हैं। तो अन यहाँ पर क्या है? अन हरफे जर है, काफी इसम है, मुजक्कर है, वाहिद है, मारिफा और मजरूर है अन के लिए, और काफी एट द सेम टाइम मुजाफ भी बन रहा है। हिम आगे अटैच जमीर है, जब इसम के साथ जमीर अटैच होकर आती है तो वो मुदाफ अलैहि बनती है। तो इसम जमीर मुतसिल जमा मुजक्कर गायब मारिफा और मंसूब मजरूर है यहाँ पर, क्योंकि काफी के लिए ये मुदाफ अलैहि बनकर आ रही है। तो यहाँ पर ये मजरूर है, मजरूर है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आ गया जाता। जाता जो है वो हमारे पास अस्माए खमसा में से है। अस्माए खमसा जो है वो पांच यानी कि अस्मा है, जिनमें एक दा, जी और जू, यानी कि मरफू मंसूब और मजरूर फॉर्म मैंने तीनों बोली हैं। तो इनका मतलब वाला या वाले होता है। तो जाता जो है ये अस्माए खमसा है। यहाँ एक राय के मुताबिक एक इसम महसूफ है, जो कि मौसूफ यानी कि ये वो मौसूफ था और ये जाता उसकी सिफत बनकर आ रहा था। तो और सिफत भी मोनस आई हुई थी और इसम भी मोनस था, ठीक है। तो दूसरी आसानी के लिए हम इसको देख सकते हैं कि वो यहाँ, चूंकि वो वहाँ यहाँ माजूफ है और उसकी हरकत यानी कि उसके मंसूब होने की जो अलामत है वो जाता पर हमें नजर आ रही है। और मोनस के सीगे क्यों इसमें इस्तेमाल में? क्योंकि ये सब शम्स की तरफ बात जा रही थी। तो शम्स चूंकि मोनस में आता था तो इसलिए सारे सीगे मोनस के इस्तेमाल में है। तो ज्यादा यहाँ पर मुदाफ बना लेंगे आसानी के लिए, ठीक है। लेकिन इससे पहले एक इसम माजूफ है, लेकिन हम उस बहस में नहीं पढ़ते। ज्यादा मुदाफ बना लेंगे, और अल यमीनी मुदाफ अलैह, इसम मुजक्कर वाहिद मारिफा और मजरूर ये मुदाफ अलैह बन जाएगा, और ये मुरक्कबे इजाफी होकर अब ये क्या बनेगा? तजाव और फेल के मुतालिक हो जाएगा। तो अन कहफिहिम, इसको हम मुतालिक भी बना सकते हैं और तजावरु का मफूल भी बना सकते हैं, ठीक है। तो आसानी यही है कि तजावरु फेल के दो मुतालिक बना लें, मुतालिक के अव्वल और मुतालिक के सानी। और ये दोनों मुतालिकान मिलकर तजावरु फेल या फाइल, दोनों मुतालिकान के साथ मिलकर ये जुमला फेलिया होकर ये हाल बन जाएगा। अगर हम इसको
ترا فعل کی جو انتا فاعل ہے یہ اس کا حال بنے گا اگر ہم اذا کو ایزا ظرفیہ لیتے ہیں. اذا ظرف طلعت جملہ فعلیہ جو ہے وہ ہمارے پاس اس کا مضاف علیہ بن جائے گا اور یہ بھی متعلق ہو جائے گا ترا فعل کے ایک رائے کے مطابق. اگر ہم اذا کو ظرفیہ شرطیہ لیتے ہیں تو طلاعت جو ہے وہ ہمارے پاس شرط بن جائے گی اور تزاور عن کافی ذات شمالی یہ ہمارے پاس جواب و شرط بن جائے گی. تو یوں جو ہے وہ اذا ظرف اپنی شرط یعنی کہ اس جملے کے ساتھ مل کر یہ تزاور فعل کے متعلق ہو جائے گا اور پھر تزاور فعل کے پھر دو متعلق نہیں پھر تین ہو جائیں گے. ٹھیک ہے پھر یہ پورا جملہ فعلیہ جا کر حال بنے گا ترا فعل کا. تو یہ دو تین رائے ہیں اس کے بارے میں یہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں. تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی. ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. اور جب وہ طلوع ہوتا ہے. ٹھیک ہے اب یہاں پر اذا جب آتا ہے تو یہ وقت کا بتاتا ہے ہمیں. ٹھیک ہے اگر وقت میں شرط کا مفہوم بھی آ رہا ہو تو اس کو ہم ظرفیہ شرطیہ لیتے ہیں اور اگر صرف وقت کا بتایا جا رہا ہے تو اس کو ہم ظرفیہ لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے جب وہ طلوع ہوتا ہے. اب کون طلوع ہوتا ہے جس میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ساری ضمیر جو ہے وہ لوٹ کس کی طرف رہی ہے یہ شمس کی طرف لوٹ رہی ہے. جب وہ طلوع ہوتا ہے تو وہ ان کی غار سے دائیں طرف بچ کر جاتا ہے. ان کافیم ان کی غار سے ذات الیمین دائیں طرف تداور بچ کر جاتا ہے. ٹھیک ہے یہ سورج کی بات ہو رہی ہے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ ان کی غار سے دائیں طرف بچ کر جاتا ہے. تو اس کے بعد ہم آگے اگلی سلائڈ پر چلتے ہیں انشاءاللہ جو کہ ہمارے پاس اسی طرح کا ایک جملہ آ رہا ہے. واؤ ہمارے پاس عاطفہ ہے. ٹھیک ہے واؤ عاطفہ جو ہے وہ ہونے کی وجہ سے ہم دیکھیں گے کہ آگے والا جملہ اس پر عطف ہوگا. تو واؤ ہمارے پاس عاطفہ ہے. اذا اس میں ظرف ظرف زمان اگین وہی پیٹرن ہم مختلف طرح کی وہی طرح کی ہم دوبارہ یہاں پر بھی کر سکتے ہیں. تو غربت جو ہے غین رابا حروف مادہ باب نون سے فعل ماضی واحد مؤنث غائبہ کا صیغہ ہے. غربا یغرب غربن دور چلے جانا دوری کی وجہ سے چھپ جانا یعنی غروب ہو جانا اور یہ فعل با فاعل جملہ فعلیہ ہو جائے گا. اور تقریدو یہ ہمارے پاس قاف را ضاد حروف مادہ باب دعا سے فعل مضارع واحد مؤنث حاضرہ کا صیغہ ہے. اور اس کے اگر دعا باب دعا سے قرض یقرض قرضا کسی سے بچتے ہوئے گزر جانا یعنی کترانا کسی کو بدلہ دینا تو یہاں پر یہ کترانا کے معنی میں آئے گا. ہم جو ہے وہ ہمارے پاس اٹیچ ضمیر ہے اور جب بھی فعل کے ساتھ اٹیچ ضمیر ہو آتی ہے تو وہ اس کے مفعول بھی ہی بنتی ہے. تو اسم ضمیر متصل ہے جمع مذکر غائب ہے معرفہ اور منصوب ہے. تو فعل و فاعل اور مفعول مل کر یہ ہمارے پاس کیا بنے گا. لیکن آگے ذات الشمال کو بھی دیکھ لیتے ہیں. ذاتہ کے بارے میں جس پہلے آپ کو بتایا کہ اسماء خمسہ میں سے ہے اور یہاں پر اس کا ایک اسم جو ہے وہ معذوف ہے لیکن آسانی کے لیے ہم اس کو مضاف لے لیتے ہیں. تو یہ مضاف اپنے مضاف علیہ کے ساتھ مل کر مرکب اضافی اور کم متعلق فعل تقرید ہو جائے گا. تو یوں تقرید فعل و فاعل یا مفعول بھی اور متعلق کے ساتھ مل کر یہ جملہ فعلیہ ہو جائے گا. یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو ہی جملے آ رہے ہیں اذا کے بعد. اگر ہم اذا کو شرطیہ لیتے ظرفیہ شرطیہ لیتے تو اذا کے بعد جو شرط آ رہی تھی اس کو ہم نے مضاف علیہ بنا لینا تھا اور ظرف اپنے مضاف علیہ کے ساتھ مل کر یہ تقرید ہم والے جملے اس فعل کے پھر یہ متعلق ہو جانا تھا اور پھر اس فعل نے جا کر پھر وہیں طرح کے ساتھ جڑ جانا تھا جو ہمارے آغاز میں بات ہوئی تھی. لیکن اب ہم ادھر یہاں پر اگر اس کو ظرف کے طور پر لیتے ہیں تو اذا کو ہم یہاں پر ظرف کہیں گے اور آگے پھر جو دو جملے آ رہے ہیں اس کو کیا کریں گے غربت کو ہم اس کا مضاف علیہ بنا دیں گے اور تقریدہم ذات الشمال کو ہم ترا فعل کے انتا فاعل سے حال کر دیں گے. ٹھیک ہے تو یہ دو رائے آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہیں اور ہم نے کہا ہوا تھا کہ معطوف علیہ معطوف کو فالو کر دیں یعنی دونوں آپس میں ملتے جلتے ہوتے ہیں کہ اگر معطوف علیہ مفرد ہے تو معطوف بھی مفرد ہوگا. معطوف جملہ ہوتا ہے تو وہ معطوف بھی جملہ ہوتا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اذا پہ عطف ہو رہا ہے یعنی کہ اسی پیٹرن پر دونوں جملے آئے ہوئے ہیں. ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. اور جب وہ غروب ہوتا ہے. اب کون غروب ہوتا ہے یعنی کہ سورج غروب ہوتا ہے تو ان سے بائیں طرف کو کترا جاتا ہے. ٹھیک ہے تو امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ اور یہ والا حصہ بھی آیت کا اسی پورشن کے ساتھ کنیکٹ ہے. تو واؤ جو ہے یہاں پر حرف ایزا حالیہ آیا ہوا ہے
हम जो है वो इसम ज़मीर मुनफसिल है, जमा मुज़क्कर ग़ाइब, मारिफ और मरफू है, मुब्तदा बनेगी, फी हरफ जर है, फजवातिन इसम है, मुज़क्कर है, वाहिद है, नकीरा और मजरूर है। और ये मौसूफ है क्योंकि नकीरा इसम के बाद अगर जार मजरूर आ जाए तो वो उसकी सिफत बनता है। तो मिन हरफ जर है, हु जो है वो इसम ज़मीर मुत्तसिल, वाहिद मुज़क्कर ग़ाइब, मारिफा और मजरूर इस्तेमाल हुई है। तो ये जार मजरूर मिलकर सिफत बन जाएंगे फजवातिन मौसूफ के लिए। तो फजवातिन मौसूफ अपनी सिफत के साथ मिलकर मुरकब तौसीफी होकर ये मजरूर इसम हो जाएगा फी जारा के लिए। तो यूं फी जारा अपने मजरूर के साथ मिलकर ये कायम मुकाम खबर हो जाएगी हम मुब्तदा के लिए। तो ये मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इसमिया हालिया हो जाएगा, और ये हाल किसका बनेगा, तक जो हम वाले जुमले में हम मफूले बिही का ये हाल बनेगा। हालांकि वो इस गार की खुली जगह में है, यानी कि साहब कहा का ये हाल है कि वो गार की खुली जगह में थे, फिर भी सूरज उनसे कतरा कर गुजरता था, तुलू होते हुए भी और गुरूब होते हुए भी। तो उम्मीद है कि आपको बात समझ आ गई होगी। तो यहाँ तक एक जुमला फेलिया जो है वो हमारा मुकम्मल हुआ है। तो इंशाल्लाह आखिर में इसको मैं पूरे जुमले को एक स्क्रीन पर आपको दिखाऊंगी। जालिका इसमें इशारा बईद वाहिद मुज़क्कर मारिफा और मरफू है। मुब्तदा बनेगा, मिन हरफे जर है, आयाती मौनस इसम है, जमा है, मारिफा है और मजरूर है। यहाँ पर मिन जारा की वजह से और ये मुदाफ भी बन रहा है एट द सेम टाइम। अल्लाह इसम है, वाहिद है, मुज़क्कर है, गायब है, मारिफा और मजरूर है। और ये मुदाफ अलैह बन रहा है आयाती मुदाफ के लिए। तो आयाती मुदाफ अपने मुदाफ अलैह के साथ मिलकर मुरकब इजाफी होकर ये मजरूर इसम हो जाएगा मिन जारा के लिए, और जार मजरूर मिलकर कायम मुकाम खबर हो जाएंगे जालिक का मुब्तदा के लिए। यू जालिक का मुब्तदा अपनी कायम मुकाम खबर के साथ मिलकर जुमला इस्मिया होकर ये जुमला इस्तनाफिया बन जाएगा, और तर्जुमा कुछ यूं होगा, ये अल्लाह की निशानियों में से है। यानी कि ये एक निशानी जो यहाँ पर बताई जा रही है कि जब सूरज तुलू होता है या गुरूब होता है तो वो साहब कहफ से कतरा कर या बच कर निकलता है। तो ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। तो उम्मीद है कि बात आपको समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद हमारे पास अगले पोर्शन में एक मन इस्तेमाल हो रहा है। इससे पहले हमने मन को जो है वो पढ़ा हुआ था, मन मौसूला। ठीक है। मन शर्तिया जो है वो दो तरह से हमें उसका उसलूब नजर आ सकता है। मन के बाद अमूमन अगर दो जुमले हों तो हम उसको मन को मुब्तदा बनाते हैं, और शर्त और जवाब शर्त को जो है वो मिलाकर खबर बना दिया जाता है, फिर जुमला इस्मिया बना दिया जाता है। ठीक है। लेकिन मन एजा मफूले बिही भी आ सकता है। कब आएगा वो इंशाल्लाह देखते हैं, और मुब्तदा कब कब आएगा वो भी इंशाल्लाह देखते हैं। मन शर्तिया की पहचान क्या है। मन मौसूला अपने बाद में आने वाले फेल पर कोई एराबी असर नहीं डालेगा, जबकि मन शर्तिया जो है ये अपने बाद में आने वाले इसम को मजजूम कर देगा। तो अभी हम इंशाल्लाह अगली आयत में देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि सॉरी इसम कह दिया फेल, फेल को मजजूम कर देगा। तो फेल हम देखेंगे कि वहां पर मजजूम हुआ हुआ नजर आया है, यानी कि फेल मुजारे ही मजजूम होता है। तो मन शर्तिया के बाद फेल नाकिस आ जाए तो मन मुब्तदा बनेगा, और फिर आगे शर्त और जवाब शर्त जो है वो उसकी खबर बन जाएगा। जब मन शर्तिया के बाद फेल लाजिम आ जाए, यानी कि फेल व फाइल ही बात मुकम्मल हो रही हो, तो भी वह मन जो है वो मुब्तदा बनकर आएगा। जब मन शर्तिया के बाद फेल मुतादी हो और मफूल मजकूर हो, तब भी मन जो है वो मुब्तदा बनकर आएगा। ठीक है। तो अभी इंशाल्लाह देखेंगे कि साइड में कौन सी सिचुएशन हो रही है। और मन जो है, जब मन शर्तिया के बाद फेल मुतादी हो और मफूल मजकूर हो, मजकूर ना हो, सॉरी यहाँ पर मिस हो गया कि मफूल मजकूर ना हो। ठीक है। मफूल मजकूर ना हो, इसकी इस्लाह कर लीजिएगा। ठीक है। मफूल मजकूर ना हो तो उस सूरत में क्या होगा, जो है वो मन मफूले बिही बनेगा। तो आज इंशाल्लाह देखते हैं कि इस आयत में कौन सी सिचुएशन हो रही है। इस आयत में ये वाली सिचुएशन हो रही है कि जब मन शर्तिया के बाद फेल मुतआदी तो है लेकिन मफूल मजकूर नहीं है, तो उस सूरत में हम मन को मफूले बिही बनाएंगे। ठीक है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपको बात समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। चलिए आगे चलते हैं। जी, आयत का अगला हिस्सा हमारे सामने आ रहा है।
मन यहदिहिल्लाहु फहुवल मुहतद। तो यहाँ मन जो है वो हमें पता चल गया कि ये शर्त के लिए आया है। कैसे पता चला? क्योंकि इसके बाद हमें एक मुजारे नजर आ रहा है जो कि मजसूम हुआ हुआ है। यहाँ पर एक या थी जो कि हज़फ हो गई है। ठीक है, इस मान की वजह से हमने पढ़ा हुआ है ना, मुजारे जब मजसूम होता है तो वाहिद के सीगों में आखिरी हरफ साकिन हो जाता है, और जबकि मुसन्ना और जमा के सीगों में उनके नून गिर जाते हैं। तो यहाँ पर हा दाल या हरूफ मादा था, और जब हा दाल या हरूफ मादा आते हैं तो या जो है वो नाकिस के जब कवाइद अप्लाई होते हैं तो या साकिन हो जाती है। तो जब ऑलरेडी हरफ साकिन हो तो मुजारे जब मजसूम करना हो तो जो साकिन हरफ है वो टोटली गिर जाता है, यानी कि वो पहले से ही साकिन था, अब मजीद उसको साकिन करेंगे तो वो वहां से चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक या जो है वो हज़फ हुई हुई है, जिससे हमें पता चला है कि ये मान जो है वो शर्तिया है और शर्त के मफहूम में इस्तेमाल होगा। तो मान जो है वो इसमें शर्त जाजिमा है। यहदी हमारे पास हादा जल हुर्फ मादा बाब दुआत फिल मुजारे मजसूम वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है। हादा या यहदियू, और इसके बाद जब हमने तब्दीली की तो यहदी रह गया था, और फिर यहदी को जब मजसूम हुआ तो फिर यहदी रह गया, यानी कि या भी हट गई यहाँ से। तो ये फेल है। आगे हमें अल्लाह हुए किस्म नजर आ रहा है जो कि मरफू फॉर्म में है, और वो जो है वो क्या होगा, इसम वाहिद मुज़क्कर मारिफा मरफू है, तो ये हमारे पास फाइल बन जाएगा यादी फेल के लिए। तो ये फेल बा फाइल। और मन, जैसे अभी हमने कहा कि जब, अब हदा यहदी का मतलब क्या होता है कि यहदी वो हदायत देता है। अब यहाँ पर तर्जुमा क्या होगा, अल्लाह हदायत देते हैं। किसको देते हैं, यानी कि ये फेल मुतादी है। हदायत किसी ना किसी को तो दी जाएगी ना, तो ये मुतादी फेल है, इसका मफूल मजकूर नहीं है। इस वजह से ये जो मान शर्तिया है ये मफूल भी ही बनेगा। तो ईमान शर्तिया को हमने मफूल भी ही बनाया, और ये हमारे पास एक जुमला फेलिया शर्त के तौर पर आ गया। तो फा जो है वो जवाब शर्त है, जजा के तौर पर आया है। हुआ जो है इसमें ज़मीर मुनफसिल वाहिद मुज़क्कर मारिफा और मरफू है, मुब्तदा बनेगी। अल मुहतद जो है वो इस्मुल फाइल है, वाहिद मुज़क्कर मारिफा और मरफू है। इस्मुल फाइल ये हा दाल या हरूफ मादा, अगेन सेम वही हरूफ मादा है, बाबे इफ्तियाल से। ये ता हमें बता रही है कि ये बाबे इफ्तियाल से है, और ये इस्मुल फाइल है, मुंह लगा हुआ है शुरू में, और यहाँ पर भी एक या थी जो कि हज़फ हो गई है। ये भी इंशाल्लाह मैं आपको पढ़ाऊंगी क्यों हज़फ हुई है। इसमें मनकूस होते हैं जिसमें या हज़फ हो जाती है। ठीक है, तो इंशाल्लाह इसको भी आप जो है वो फिलहाल इतना ही समझें, और अभी हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर ये एक इसम है वाहिद है, मुज़क्कर मारिफा और मरफू है, और खबर यहाँ पर देखें मारिफा आई हुई है। तो जब मारिफा खबर आ जाती है तो भी वो जुमले में हसर पैदा करती है। तो यूं मुब्तदा अपनी खबर के साथ मिलकर जुमला इस्मिया होकर जवाब शर्त बन गया। यूं शर्त अपनी जवाब शर्त यानी किसी मिलकर जो है वो एक जुमला हमारे पास मातूफ अलई बन गया, क्योंकि आगे हमें वाओ हरफ अतफ नजर आ रहा है। ठीक है, तर्जुमा कैसे होगा, अल्लाह। अब जैसे मैंने आपको कहा कि अल्लाह फाइल का तर्जुमा पहले आ गया और मान को हमने मफूल बनाया, तो मफूल का तर्जुमा आ गया अल्लाह जिसे यहदी हदायत दे या हदायत देते हैं। ठीक है, फा सो या फिर सो वही हदायत याफ्ता है। अब जो वही का तर्जुमा किया है ना, ये अल मुफ्तद की वजह से किया है कि अब मारिफा खबर आई हुई है। तो जब खबर मारिफा आती है तो उसमें हसर पैदा होता है। सो वही हदायत याफ्ता है, यानी कि जिसे अल्लाह हदायत दे वही हदायत याफ्ता है, वही हदायत को पा सकता है। ठीक है, तो उसके बाद वाओ आतिफा आ गया हमारे पास। मान जो है वो अगेन इसमें शर्त जाजमा है। यूज लिल अगेन मुजारे मजसूम नजर आ रहा है। दुआत लाम लाम हरूफ मादा बाबे फाल फिल मुजारे मजसूम वाहिद मुज़क्कर गायब है। और अव्वला यूज लिलु असली था, अव्वला युजिल्लु तब्दीली के बाद हो गया। यहाँ पर भी मुदाफ के कवायद अप्लाई हुए तशदीद के साथ हमें नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर देखें यूज लिल हमें कवायद से पहले नजर आ रहा है। तो जैसे मैं आपको बताती हूँ कि कवायद जो है वो हरफ आखिर नहीं है। कभी ये तब्दील होकर इस्तेमाल हुए हैं और कभी कवायद के बगैर ही फेल इस्तेमाल हुए हैं। दोनों तरह से कुरान पाक में हमें इसरूप नजर आएगा। तो फा जो है वो हमारे पास, अच्छा ये हम यूज लिल को देख लेते हैं। यूज लिल फेल फाइल हुआ, और मन जो है वो मफूल बिही के साथ जुमला फेलिया शर्तिया हो जाएगा। फा अगेन जजाइया है। लन जो है वर्फ नासबा है जो कि मुजारे को मजसूम करता है।
सॉरी, मुजारे को मंसूब करता है। ठीक है, मुजारे को मंसूब करता है और जोरदार नफी करते हुए मुजारे का तर्जुमा मुस्तकबिल के साथ खास कर देता है। तो मन के बाद जो यानी शर्त आई थी, शर्त और जवाब शर्त का इराब तकरीबन सेम होता है, यानी कि अगर शर्त वाला हिस्सा फेल जो था वो मजजूम था, तो जवाब शर्त का फेल भी मजजूम होना चाहिए था। अगर ये लन ना होता तो जवाब शर्त का फेल भी मजजूम होता, लेकिन चूंकि अब ये लन आया हुआ है तो लन ने मजजूम होने की बजाय मुजारे को मंसूब कर दिया है। तो महल्ले इराब जो है वो जवाब शर्त का मजजूम ही होगा। तो ताजीदा फेल वाओ जीम दाल हरूफ मादा बाब दुआद। फेल मुजारे मजजूम वाहिद मुजक्कर हाजिर वजदा यऊजिदु। तो यऊजिदु से यजीदु कैसे बना? ये मिसाल के कवायद, यानी कि वाओ जीम दाल हरफे इल्लत जो है वो हरूफे मादा में आई हुई है, तो मतलब ये मौतल है। मौतल में मिसाल के कवायद अप्लाई होंगे, जिसमें से ये वाओ हजफ हो जाएगी। वो इंशाल्लाह कवायद पढ़ेंगे तो आपको फिर पता चल जाएगा। तो यजीदु से ये तजीदु बन गया। तो अब ये फेल बा फाइल और लाम हरफे जारा है। हु जो है वो इसम ज़मीर मुतसिल वाहिद मुज़क्कर मारिफा मजरूर है। लहू जार मजरूर मिलकर ये मुतालिक हो जाएगा ताजीदा के। वलीशम हमारे पास इसम है, वाहिद मुजक्कर है, नकीरा है, मंसूब है। मुर्शिदा जो है इसमें फाइल है, मुंह लगा हुआ है शुरू में, और आइन कलीमा जो है वो जेर वाला है। वाहिद मुज़क्कर नकीरा है और मंसूब है, और ये सिफत बन जाएगा वलीशन की। मौसूफ सिफत मिलकर मुरक्कब तौसीफी होकर अब ये ताजीदा फेल के लिए मफूल बन जाएंगे। तो ताजिदा फेल फाइल मुतालिक और मफूल के साथ मिलकर ये जुमला फेलिया होकर जवाब शर्त बन जाएगा। और तर्जुमा हम कैसे करेंगे? अच्छा, यहाँ पर ये जो आपको मुब्तदा लिखा हुआ नजर आ रहा है ना, ये अगर हम इसको जो है वो एज अ मफूल नामान को ट्रीट करते, तो उस सूरत में हम यहाँ पर इसको मुब्तदा बना सकते थे। लेकिन चूंकि अब हमने पढ़ लिया है कि मुब्तदा जो है वो इसको हम नहीं बनाएंगे, हम बल्कि इसको जो है वो अब वो ही बनाएंगे। इसको अब हमने इस पर बात नहीं करनी, ठीक है। इसको अभी हम फिलहाल यहाँ से क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, ये मुब्तदा अब हम इसको नहीं बना रहे। चलिए आगे चलते हैं। तर्जुमा कैसे होगा इस हिस्से का, वो इंशाल्लाह देख लेते हैं। अच्छा, और जिसे वो गुमराह करे तो उसके लिए हरगिज कोई रफीक, कोई सीधी राह दिखाने वाला वो ना पाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको बात समझ आ गई होगी। ये मुब्तदा और खबर को इग्नोर करें, क्योंकि ये जो है वो अब उसलूब इस्तेमाल नहीं हुआ यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर हमारी आयत जो है वो मुकम्मल हो जाती है। और अब हम देखते हैं आगे कि अब हमने, जैसे मैं आपको कहा था कि आखिर में मैं आपको दिखाऊंगी कि आप हमने किस पोर्शन को क्या बनाया है। तो इंशाल्लाह अभी एक एक करके हम देखते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास एक जुमला फेलिया बना, और एक जुमला इस्मिया बना, और एक और जुमला फेलिया बना जो कि जुमला तालीलिया बना था। अब एक एक करके देखते हैं। वतरा शमसा, ये हमारा पहला पोर्शन था, जिसमें हमने तरा को फेल फाइल और अशमसा को मफूल बनाया था। और आगे इजा तला तजावरु अन काफिन जात यमीनी मातूफ अलई, और इजा क़रबत तक़रीदुहुम जात शिमाल को हमने मातूफ। ठीक है, और ये तक़रीदुहुम का जो हम है, ये इसका हाल बना था, यानी कि हम जुलहाल अपने हाल, वहुम फी फजवातिन मिन, इसके साथ मिलकर, यानी कि जुलहाल अपने हाल के साथ मिलकर ये मफूल बन गया था तकरीबुल फेल का। ठीक है, यूं इस तरह से ये जो इधर से लेकर इधर तक ये सारा मातूफ के इसमें हिस्से में आता है। तो मातूफ अलैहि अपने मातूफ से मिलकर इजा के साथ अब ये जाकर क्या बन गए? तराफ फेल के मुतालिक हो गए। ठीक है, तराफ फेल, अंता फाइल, अशमसा मफूल, और इस सारे मुतालिक के साथ मिलकर ये जुमला फेलिया होकर एक जुमला बन गए। और दूसरा जुमला हमारे पास आया जालिका मिन आयातिल्लाह, ये जो जुमला इसमिया इस्तिनाफिया बनाया था हमने। और उसके बाद एक और जुमला आया जो कि जुमला फेलिया बनाया हमने, यादी फेल,
اور اللہ फाइल और मन को हमने मफूल बिही बनाकर शर्त बनाया, और इसके बाद जवाब और शर्त जो है वो जुमला इस्मिया की सूरत में आई, हुआ मुब्तदा और मुब्तद जो है वो खबर। ठीक है। और खबर जिसमें मैंने आपको बताया कि मारिफा आई हुई है, तो इट मीन कि यहाँ पर हसर भी आएगा। और उसके बाद एक और जुमला बनाया जो कि मातूफ बना था, क्योंकि वाव आतिफा आ रहा है। पहला हिस्सा ये वाला मातूफ अलैह और दूसरा मातूफ। तो मन मई यूज लिल, ये हमारे पास शर्त बन गई थी। ठीक है। और आगे जो है वो जवाब शर्त आई हुई थी। तो ये इस तरह से हमने इसकी तरकीब थी। और ये जुमला तालीलिया भी कहा गया है इसको, मुख्तलिफ आरा के मुताबिक इसको जुमला इस्तनाफिया भी कहा गया है, कि जिससे अल्लाह हदायत देना चाहे तो वही हदायत पा सकता है। और अगर वमन युज़लिल फलन तजिद लहु वलिय्यम मुर्शिदा, कि अगर वो जो है वो अल्लाह उनको हिदायत नहीं देते, तो कोई भी वली, कोई भी उनका जो दोस्त है वो उनको कोई भी चीज, कोई भी ताकत दुनिया की उनको गुमराह होने से नहीं बचा सकती। हरगिज़ लन तजिदा, वो नहीं पाएगा। तो इंशाल्लाह इसका तर्जुमा हम आखिर में दोबारा इसको देखते हैं। अल शम्सा जो है वो अलिफ लाम हरफी जायदा है, अल जमीन का भी अलिफ लाम हरफी जायदा है। इनके अलिफ लाम हटाने से इनके माना पे कोई फर्क वाकया नहीं होगा। फजवतिन तनवीन वाहिद है, माना कोई या एक के, वलीशम मुर्शिदा भी तनवीन वाहिद है, माना कोई या एक के। तो ये आयत थी हमारे सामने। और इस आयत का अगर हम तर्जुमा देखें तो क्या था, और तुम देखोगे जब धूप निकलती है वो इनके गार से दाएं तरफ बच कर जाती, और जब वो ढलती है तो इनसे बाएं तरफ को कतरा जाती है, और वो गार की खुली जगह में है। ये अल्लाह की निशानियों में से, यानी कि सहाबे कहफ जो थे वो गार की खुली जगह में थे। ये अल्लाह की निशानियों में से था कि धूप जो है वो उनको बचा कर गुजरती थी। जिससे अल्लाह हदायत दे सो वही हदायत याफ्ता है, और जिससे वो गुमराह करे तो इसके लिए हरगिज, ये जो हरगिज का मफहूम है ये लन की वजह से आ रहा है, हरगिज कोई रफीक, कोई सीधी राह दिखाने वाला वो नहीं पाएगा। यानी कि अल्लाह ही हम, अगर हमें सीधी राह दिखाएं तो हमें सीधी राह नजर आ सकती है, अदरवाइज हमें सीधी राह भी नजर नहीं आ सकती। तो इस आयत में एक बहुत ही प्यारा पैगाम अल्लाह ताला की तौहीद का, अल्लाह की कुदरत और उसकी अजीम निशानियों का जिक्र हम देख रहे हैं। यानी इसका गार का मुंह जो था वो शुमाल की तरफ था, जिसकी वजह से सूरज की बराह रास्त रोशनी या धूप उन पर नहीं पड़ती थी, ना तलू होने के वक़्त और ना ही गुरूब होने के वक़्त। ठीक है। तो मैं यहदील्लाहु वाले जुमले में हमें देखा कि खबर मारिफा आई हुई है, इस वजह से इसमें हसर का माना पैदा हो रहा है, कि जिसे अल्लाह सीधी राह पर चलाए वही सीधी राह पाने वाला है। तो असहाबे कहफ को अल्लाह ताला ने सीधी राह दिखाई और उस पर फिर चलाया भी। असहाबे कहफ को पहले सीधी राह कैसे दिखाए, ईमान की उन्हें नेमत दी, फिर उनसे ऐलान हक करने की हिम्मत भी उनको दी, यानी कि उन्होंने जो बादशाह के सामने जाकर बात की थी वो भी अल्लाह ताला की दी हुई हिम्मत थी। तो हिजरत की तौफीक दी, कि अपने घर बार अपनी आसाइशें छोड़कर वो हिजरत करके गार में जाने का रास्ता अल्लाह ताला ने उनको सुझा दिया। फिर धूप को इस तरह से निकाला, यानी कि सूरज को इस तरह से निकाला और गुरूब किया कि वो उनको बचा कर गुजरती। फिर हवा की मुनासिब मिकदार जितनी उनको जरूरत थी वो उनकी गार में उनको मुहैया की, और वो लोगों की निगाहों से, यानी कि दुश्मनों की निगाहों से भी अल्लाह ने उनको महफूज कर लिया। ये थी अल्लाह की मदद, ये थी हदायत जो अल्लाह ताला ने असहाबे कहफ को दी। ठीक है। अल्लाह अपने नेक बंदों की हिफाजत इसी तरह से करते हैं जिसका वहमो गुमान भी नहीं किया जा सकता। हदायत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, किसी के पास इख्तियार नहीं कि वो बगैर अल्लाह की तौफीक के सीधी राह पा सके। दुनियावी असबाब महदूद हैं, असल सहारा अल्लाह सुब्हाना तआला का है, जो हमेशा और दायमी रहने वाला है, जो अपनी मखलूक को नामुमकिन हालात में भी बचा लेते हैं। तो अल्लाह ताला से मदद जो है वो इस यकीन, इस तवक्कुल के साथ मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला असबाब के ना होते हुए भी हमारी मदद कर सकते हैं। तो दुनियावी असबाब तो बस जरिया बनते हैं, और वो भी अल्लाह की मदद की, अल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला के इज़्ज़त से ही असबाब जो है वो हमारे हासिल होते हैं।
لیکن سہارا کس کا ہے؟ اللہ کا۔ تو سب سے پہلے، اسباب سے بھی پہلے ہمیں اللہ سے مدد مانگنی ہے، اور توکل جو اپنی مخلوق کو ناممکن حالات میں بھی بچا سکتا ہے، یعنی کہ اس بات پہ ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس اسباب ہیں یا نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بچا لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو مشکل سچویشن ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہم تمام مسلمانوں کو بچا لیں۔ تو یہ منظر جو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ صحابہ کہف کو پہلے ایمان کی نعمت دی، پھر اعلان حق کی ہمت، پھر ہجرت کی توفیق، غار میں جس طرح سے انہوں نے ٹائم گزارا، یہ منظر اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اللہ اپنی نشانیوں کے ذریعے ہمیں یقین دلاتے ہیں کہ ایمان والوں کی مدد لازمی ہے، یعنی کہ اگر وہ ایمان لائے تھے، سچے دل کے ساتھ انہوں نے اللہ کو مانا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر ان کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ تو اس آیت سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اگر ہم اللہ پر سچا ایمان رکھیں تو وہ کائنات کی ہر چیز کو ہماری حفاظت کے لیے مسخر کر سکتے ہیں، لیکن اگر اللہ ہدایت نہ دے تو دنیا کو کوئی بڑا استاد، کوئی رہنما، کوئی طاقت رکھنے والا، کوئی دنیاوی طاقت ہمیں سیدھی راہ نہیں دکھا سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اصحاب کہف کی طرح ایمان میں ثابت قدمی عطا فرمائے، اور اپنی حفاظت جو ہے اپنی حفاظت کے حصار میں لے لے، اور ہمیں ہدایت سے نواز دے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی حفاظت مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنی چاہیے، کیونکہ ہدایت ایک ایسی چیز ہے جو بغیر مانگے نہیں ملتی، اور جیسے اس آیت میں ذکر ہے کہ جسے چاہے اللہ ہدایت دے، اس میں کوئی شرط، کوئی قید نہیں ہے کہ اللہ کس کو ہدایت دے گا اور کس کو نہیں دے گا، تو جس سے چاہے اللہ ہدایت دے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے پورے توکل اور پورے یقین کے ساتھ ہدایت مانگنی ہے، اور ہدایت اور سیدھی راہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دکھائیں تو ہی نظر آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ دکھا دے اور اس پر خود چلا بھی دے، ہمارے دلوں کو مطمئن کر دیں۔ آپ ہدا یا ہدی کا جب ترجمہ دیکھیں گی تو اس میں آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ ہدایت کیا ہے، کہ پہلے وہ بات ہمارے دل کو سجھا دینی، پھر اس پہ ہمارا دل، ہمارا ذہن کا مطمئن ہو جانا، یعنی کہ ہمارا پورا اپنا آپ جو ہے وہ اس چیز پر، اس بات پر اطمینان پا جائے، یہ ہے ہدایت اللہ کی۔ تو ہدایت ہی ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے ہم انشاءاللہ جنت میں جا سکتے ہیں، اور ہدایت کا جو ذریعہ وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب جو ہے وہ ہدایت کے لیے ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ہدایت کے لیے ہے۔ اور یہ ہدایت ہمیں کہاں سے ملے گی؟ یہ قرآن پاک سے ملے گی۔ قرآن پاک میں ہدایت کے تمام طریقے جو ہے وہ ہمیں بتائے گئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی طور پر وہ طریقے ہمیں کر کے بھی دکھائے ہیں۔ تو ہدایت کی دعا بھی ضرور مانگیں، اور اللہ تعالیٰ سے اس بات کی امید بھی رکھیں کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور ہمیں ہدایت یافتہ کریں گے۔ تو انشاءاللہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں، اور لائک کر دیں، شیئر کر دیں، یہ تھوڑی سی حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے، قرآن پاک کی برکتیں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ جاتی ہیں۔ تو ہمارا مقصد بھی یہی ہے، قرآن کی برکتیں، قرآن کا مفہوم، آیات کا مفہوم، زبان جو ہے وہ ہر عام اور خاص سیکھ سکے۔ تو انشاءاللہ اگلی آیت کے ساتھ ملتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔